السلام علیکم، میرا نام محمد ارشد شاہد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان۔ آج کل جو ہے وہ میاں صاحب بھی ٹکٹیں وغیرہ بانٹ رہے ہیں، پارلیمنٹ بورڈ کا اجلاس ہوا ان کا آج بھی، اور اس میں وہ خطاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اپنا احتساب ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے کہ مجھے کیوں نکالا 93 کے وقت بھی اور 99 کے دور میں بھی مجھے کیوں نکالا۔ آخر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ یہ ایک ویسے تو سوال بنتا ہے کہ آخر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو بار بار نکالا جاتا ہے، تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ الیکشن جیسے جیسے قریب جاتا جا رہا ہے ٹائم، ویسے ویسے بلاول بھٹو صاحب، زرداری صاحب جو ہیں، بلاول بھٹو صاحب، ان کے جو ہیں وہ تنقید کا نشتر جو ہیں وہ تیز ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ نواز شریف صاحب کے اوپر جو ہے وہ بات کری جاتے ہیں کہ یہ تیسری بار 3 بار وزیر اعظم جو ہیں وہ ناکام ہو گئے تھے، یہ تو اب بھی ان کو کیوں موقع دیا جائے کہ وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن کے ملک و قوم کے لیے کام کریں۔ تو اس کے اوپر ہمارے ساتھ موجود ہے رانا شاہد محمود صاحب اسٹوڈیو کے اندر، اور ان کو ویلکم کہتے ہیں اور اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں رانا صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، شکر اللہ تعالیٰ کا، بالکل آپ بڑے ہاٹ موضوع بھائی لے رانا کے صاحب آج کل تو الیکشنوں کا موسم ہے تو یہی ٹاپک ہے۔ آہ، تو آپ اس سلسلے میں کیا رائے، اپنی رائے آپ نے جو بیان کی ہے رکھتے ہیں جو ساری؟ میں تو سمجھ رانا صاحب، دیکھیں اگر تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے نا کہ دیکھیں نواز شریف صاحب جب بھی حکومت میں آتے ہیں تو ان کو نکال دیا جاتا ہے، بلکہ نواز شریف صاحب کے بینظیر بھٹو صاحبہ سی ان کو بھی نکال دیا گیا، عدالتی قتل قرار دیا گیا وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا۔ تو مطلب کہ کوئی نہ کوئی ایسی وجوہات ہیں نا جو سیاستدانوں کو اتنا برا کر دیا گیا عوام کی نظر کے اندر بھی، اور ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسنیشن کر دی جاتی ہے۔ اس کی وجوہات کچھ نہ کچھ تو ہے نا جس طرح سے ملک ہمارا پیچھے چلا جاتا ہے۔ اصل میں نا یہ جو سارا کھیل چل رہا ہے نا، ہاں جی، وہ کھیل یہ چل رہا ہے کہ پنجابی چ کہندے نہیں کہ سارا ڈوئی دا رولا ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے نا، جو ایک ایک ہرائکی کے تحت، مطلب ان کی وہی بات اور تربیت ہوتی ہے، ہاں جی، کوئی بھی لیفٹیننٹ اگر آتا ہے تو وہ اس کا جو ہے چیف تک پہنچتے پہنچتے اس کی کتنی ٹریننگ ہوتی ہے، پھر جی، جا کے وہ اس کے وہ ہوتا ہے ایک اے سی سی ایس پی آتا ہے، یا وہ چیف سیکرٹری تک بنتے بنتے یا پرنسپل سیکرٹری بنتے کتنے مراحل سے گزرتا ہے، جی، ٹھیک ہے۔ تو یہی ایک طریقہ کار ہے کہ جو ایک سیاستدانوں کے لیے بھی مروجہ ہے جی، کہ سیاستدانوں کی جب یہ الیکشن ہوتے رہیں گے، تربیت ہوتی رہے گی، یہ آگے بڑھتے جائیں گے، جی، ٹھیک۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ جب ہمارے پاس ڈنڈا ہو، ہم کیا کہتے اختیار ہو، تو وہ پھر اختیار چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، جی، چاہے کوئی بھی آفیسر ہو، چاہے کوئی بھی اہلکار ہو، کیونکہ اس کے پاس تھوڑا سا اختیار ہوتا ہے، حالانکہ اس کا جو اختیار ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی خدمت کی جائے، پبلک ڈیلنگ ہاں جی، بہتر۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، وہ جو کلائنٹ آتا ہے، جو بھی سمجھنے کو ضرورت مند ہوتا ہے اس ہاں حوالے جی، سے، اس کو اس کی خدمت گزاری کی بجائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو اس طرح ڈیل کیا جاتا ہے جیسے وہ آپ کا غلام ہو، اس کو آپ جی۔ مطلب کوئی، میں چاہے کوئی کلیریکل سٹاف ہے یا کوئی لیکن اور رانا ہے۔ صاحب خدمت تو چلیں یہ سارے دیکھیں نا، سی ایس پی بھی خدمت کرتے ہیں، ابھی آحا چیمہ صاحب جو ہیں وہ بری ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اگر دیکھا جائے تو جدید لاہور کا جتنی ترقیاتی کام ہوئے، جیسے اورنج ٹرین آ گئی، میٹرو بسز آ گئی، اسپیڈو جو بس آئی تھی اس کے مطابق، اور کتنے سارے لاہور میں ترقیاتی کام تھے ان کی زیر نگرانی بھی ہوئے، اور ان کو شباز شریف صاحب کا رائٹ ہینڈ بھی کہا جاتا رہا۔ تو مطلب کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی رہی۔ اب ایک قابل بندہ اگر اس طرح کے ترقیاتی کام کرتا ہے، اس کو آپ کسی نہ کسی الزام کے اندر آپ اندر کر دیتے ہیں، پھر وہ اس بیچارے کے جو زندگی کے اتنے سال گزرے ہوتے ہیں، جو اس نے خدمت کی ہوتی ہے، وہ اپنے ہمسایہ یا اپنی عوام کے سامنے جو ہے وہ کس طرح سے، مطلب کہ وہ کیا، ایک تو ان کی زندگی کے سال تو گزر جاتے ہیں نا، وہ جو ان کے بند یا قید میں یا جس طرح بھی ہوتے ہیں، تو اس چیز کا بھی تو کوئی نہ کوئی سدبل اسباب ہونا چاہیے نا۔ اس میں بھی آپ کی جو سوال ہے نا، وہ بڑا یہ سمجھ لیں کہ ٹپیکل ہے۔ ہوں، ادارے ہیں، وہ بھی اداروں کے ملازم ہیں، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ وہی اداروں کے اہلکار ہیں جو کسی اوپر غلط جو ہیں جھوٹے کیس بناتے ہیں، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ جب کوئی اہلکار اپنی ڈیوٹی کو بہتر طریقے سے انجام دے
तो मैं नहीं समझता, बल्कि आपको शायद एक रेफरेंस भी मैंने दिया था कि अपने वकील से मैंने कहा कि ये देखें अदालतों में जो रश है, अगर जो बंदा जिस सीट पे बैठा है वो इंसाफ करना शुरू कर दे जी जी तो फिर ये ऐसा मसला ना हो। बिल्कुल। असल मसला यही है कि जो भी बंदा आता है वो अपनी ब्राइब प्राइम पोस्टिंग के लिए, प्लीजिंग पोस्टिंग के लिए वो अपने मफादात जो है उनको आगे रखता है। जी और जब वो आगे रखता है तो फिर वो उसके लिए फिर कोई नहीं कैद के कोई क्या है, किस तरह है, खिदमत गुजार है, उसको अपने मतलब से गर्ज है। बिल्कुल ठीक है। और यही मसला बनता रहा है जब से किसी की अना आ जाती है, मैं तो उसको अन्ना कहता हूँ, जो ये आ जाती है। हाँ जी ठीक है। वो जब अन्ने हो जाते हैं तो फिर ये सारी सूरत बन जाती है। बिल्कुल। ठीक। और साथ में दूसरी बात यह है कि मियाँ साहब ने जो काम किए हैं, मैं हाँ दूसरे जी क्वेश्चन की तरफ जो आप बिलावल भुट्टो की तरफ बात कर रहे जी हैं, जी देखें मियाँ साहब जब भी आए हैं उन्होंने कुछ ना कुछ मुल्क में डेवलप, जो मुझे जो या आप सबको जो तरक्की नजर आ रही है हाँ जी ये सारी इन्हीं के अदवार में हुई है। हाँ जी ठीक है। अभी देख लें सिंध जो है इनके पास कितनी देर से है। बिल्कुल, काफी तकरीबन ठीक है। 10-12 साल से ज्यादा ही हो गया है। ये भी ग्रीन लाइन सर्विस मियाँ साहब ने पिछली दफा दी है। हाँ इससे जी पहले क्या है, हाँ जी मैंने सखर भी विजिट किया है, मैंने जी जी मध्य इनके बेंच हैदराबाद भी, ये दीगर सारे शहर, जी जी वहां पे मुझे सिवाय गंद के और कुछ चीज नजर नहीं आई। तरक्याती काम तो राणा साहब कम है वहां पे, बिल्कुल ऐसे है, लेकिन सिस्टम एक चल रहा है। देखें सिस्टम क्या, देखें ना कि लोगों की फैसिलिटी के लिए क्या काम किया है। जी अब वो कह रहे हैं चौथी दफा इनको वजीर आज़म बनने के लिए राबते से ताना भी मार रहे हैं, हाँ ताना जी जनी कर रहे हैं ये सारे, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं। हाँ जी अपने पंजाबी की गल अपने मंजी थले डांग ते नहीं फिरते, उन्होंने किया की सिंध वाले ने लोगों के नाल। हाँ जी ठीक है। क्या हमने सिंध के में आबादकारी को इस तरह की है हाँ जी कि वहां पे ग्रीनरी ग्रीनरी नजर आ रही हो। जी वहां पे तो वो रेती उड़ती, मिट्टी उड़ती मुझे नजर आती जहां भी हाँ जी जाती है सारी। क्यों, मतलब इसका जवाब नहीं है। हाँ लेकिन जी। सिर्फ ये अपनी वो क्या अना कहते की हैं, तस्कीन तो नहीं राणा साहब? अना की तस्कीन है, अना की तस्कीन नहीं है। जी ये एक ऐसी खलफत क्या कहते हैं इनमें पैदा हो रही है। जी जी ठीक है। जो कि एक दूसरे को बर्दाश्त ना करने की है। एक जो सियाको सबाक हैं या एक जो क्या कहते हैं उसको इखलाकियात है, जी जी ये उससे आ रही होकर सारी बातें कर रहे हैं। जी जी ठीक है। अभी देखें ना बहुत सारी जगहों पे हम एक दूसरे को गालम गलोच भी कर रहे हैं। ये तो खैर राणा साहब, अभी पिछले जो 5 साल गुजरे तो उस दौर के अंदर न जाने पता नहीं क्या कुछ अखलाकियत के दायरों जो है वो तय किए गए, पता नहीं क्या कुछ हुआ। वो देखें, वो उसने जितना नुकसान पहुंचाया है ना इस हाँ मुल्क जी को, मेरा ख्याल है कि मैं नहीं समझता कि इससे पहले चाहे भुट्टो साहब ने भी कहा था कि जी आप अपने हक के लिए लड़ें जिस तरह, हाँ जी लेकिन उन्होंने गालिम गलोच के कल्चर को फरोग नहीं दिया था। हाँ जी ये जाए कि उन्होंने भी किसी के नाम थोड़े से बिगाड़ते थे, लेकिन जिस तरह के नाम इन्होंने रख दिए हैं और जो इस तरह कर रहे हैं, और जो सोशल मीडिया पे इनके जो पैरोकार हैं जिनको दलील से काम कोई नहीं है। लेकिन राणा साहब उन्होंने अपना वक्त गुजरने के साथ सबक भी तो सीखा ना, उन्होंने इन चीज़ों को जो है वो छोड़ दिया, और यही चीज़ इसलिए छोड़ी उन्होंने कि ये अगर चीज़ें चलती रही तो आवाम के अंदर भी मुंतकिल होंगी। तो अवाम के नज़र में तो देखें सियासतदान एक जैसा ही अब बन गया, अब यहाँ बना दिया गया है कि जो भी आता है वो सिर्फ मुल्क में कहते हैं कि जी खाने के लिए ही आता है, आवाम के लिए कोई कुछ नहीं कहता, लोगों के लिए कोई कुछ नहीं सोचता। ये सोच डेवलप कर देगी, इसका भी तो खात्मा ये जरूरी है। देखे ना बात वही आज आ जाती है कि वो जो अब जो इस दफा 5वीं पुश की दोगली अबलागी जंग शुरू की थी इन्होंने। हाँ जी ठीक है। वो क्यों की थी, जी अब इन्होंने ट्रेन किए थे ना, वो पिछली दफा भी मैंने जिक्र किया था कि वो लोगों को ज़हनी तौर पर इतना प्रागंदा कर दिया गया है, और उससे पहले भी था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसको ज्यादा इन्होंने शिद्दत से किया। अब वो क्या हुआ, वो अपने गले पड़ गया। बिल्कुल ठीक है ना। मैं किसी का नाम तो नहीं लेता, ये मुबैना तौर पर जो इनकी लोगों की जो हरकत थी हाँ वो जी इनके खुद ही गले पड़ गई हैं। हाँ जी अब देखें, चाहे अदलिया हो, चाहे इंतजामिया हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, या कोई और अदारा भी जो भी है सारा, ये सारे अब देखें ना, जिनकी इतनी रिस्पेक्ट थी पहले कोई उनका नाम लेने से 100 दफा सोचता था। हाँ जी
अब वही बात आ गई कि टगे टोकरी हुए हैं सारे। हाँ जी। ठीक है, कोई किसी का कोई लिहाज नहीं, कोई जिसको जो मुंह में आता है कर दो। फिर उसमें जो हमारे कानून साजी भी है, हाँ वो जी। भी अगर किसी के ऊपर जिसके मर्जी इल्जाम लगा दें, जो मर्जी कर दें, जी जी। ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई केस हद तक इज्जत का करता है, हाँ जी। ठीक है, डेफरमेंट का केस करता है, तो वो सालों साल, बल्कि सैकड़ों साल गुजर जाते हैं, हाँ जी। उसका कोई बिल्कुल। आता ही नहीं मतलब। हालांकि ये होना ये चाहिए कि जब ये ऐसी बात हो, जी अगर जी। किसी के ऊपर इल्जाम तराशी हो, तो इसके लिए एक टाइम लिमिट कर दिया जाए कि जो 5 से 6 महीने मैक्सिमम के अंदर उसका केस का फैसला कर दिया जाए। जी जी। और जिसकी प्लांटी है, जिसने किसी को बदनाम किया, जिसने जो भी किया, उसका उसको खमियाजा भुगतना पड़े। जब तक बिल्कुल। हम हमारे देखें, हमारे कानून में बने तो हुए हैं, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जी। इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है? इसलिए कि हम अपने मफादात आ जाते हैं इसमें रास्ते में। राणा साहब सिस्टम को भी तो चलना देखे ना। सिस्टम जब तक एक प्रॉपर अपने टाइम को पूरा नहीं करेगा तब तक ये चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट होंगी? ये भी तो एक काबिल लम्हा फिक्री है ना, सोचने की बात है। देखिए ना, बात सुने, अदारे जो हैं वो परमानेंट है, हाँ जी। अदारों में रहने वाले परमानेंट है। जी ये उनका काम है कि वो इन चीज़ों की पाबंदी करें, जी। जी ठीक है। बाहर से देखे ना, मैं आपको मजबूर करता हूँ ये करें आप, ठीक है, इलीगल काम है, ठीक है। आप कहते हैं ये मेरे ये तो गैर कानूनी में है, ये इसके हवाले से मैं नहीं कुछ कर हाँ सकता, जी। ठीक है। आप खड़े होते हैं, स्टैंड ले लेते हैं, हाँ जी। ठीक है। हमारे स्टैंड यहाँ पे लेने वाला ही कोई नहीं है। जी। जो स्टैंड लेता है उसको दूसरे जो हैं वो, जो उससे आगे का स्टेप होता है, वो उसको फिर करना शुरू कर देते हैं। अब देखें ना, जो ये मुख्तलिफ जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का शायद वो फैसला है कि जब ये जो अदालती निज़ाम में जो मतलब जिनके खिलाफ शिकायत होती हैं, वो जिस तरह मतलब जी जी। उनका डील किया जाता है, लेकिन अगर वो रिज़ाइन कर दे या इस तरह कर दे, उसके बाद क्या होता है, वो बरी हो गया। हालांकि जो उसने कमाल किया हुआ है, जो उसने उस हवाले से जो चीज़ें की हुई हैं, क्या उसकी सजा कोई नहीं? अब एक और बात है कि हम जब एक बंदा रिटायर होता है, कुछ लोगों को ऐसी मुराद दी गई हैं कि बंदा सोचने में मजबूर रहता है। अगर उनको पेंशन भी इतनी इतनी लाखों के हिसाब से मिल रही है, ठीक है, अब फिर उनको इतना स्टाफ देने की क्या जरूरत है? उनको इनकी क्या जरूरत है? ये तो राणा साहब ये सिस्टम। देखे ना, अवाम का जो गरीब अवाम का या जो टैक्स देते हैं, उनके पैसे का ज़िया है। सारे मुल्क में सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो भी हैं, उनमें सब में एक जैसा निज़ाम होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरे जो तरक्की याफ्ता ममालिक, वहाँ पे क्या होता है, साइकिल पे चीफ प्राइम मिनिस्टर भी फिर रहा होता है, चीफ मिनिस्टर भी फिर रहा होता है, सब में फिर रहा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। उसको तो नहीं किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत या किसी, क्या हमने निज़ाम, अगर हम निज़ाम इंसाफ प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करें, जब तमाम अदारे अपने अपने काम जो है अपनी करें लगन से और ईमानदारी से, तो ये कभी मसले पैदा ना हो। बिल्कुल, ये मसले तभी पैदा जो हैं वो नहीं होंगे जब तक हम सिस्टम को कंप्लीटली तौर पर और आज़ादाना तौर पर उसको काम करने नहीं देंगे। एक सिस्टम का एक ड्यूरेशन होता है जी, अगर उसको पूरा एक टाइम उसका सर्कल पूरा होता रहे, तो सारी चीज़ें खुद ब खुद जो है वो अपने एक तरीक़ाकार के मुताबिक हल होना शुरू हो जाती हैं। तो उसी के अंदर आवाम की भी बेहतरी होती है और मुल्क के लिए भी बेहतर होता है निज़ाम। तो ये है कि जी अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग के अंदर मिलते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।